किसी भी तरह का, ठीक है। रॉ फीचर्स भी दे सकते हैं, मोर रिफाइंड फीचर्स भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे हमको खुद कुल मिला के ये है कि खुद फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन नाउ बाय अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है विद द अराइवल ऑफ द डीप लर्निंग अप्रोचेस और डीप आर्किटेक्चर्स। in deep learning approaches what we have, we beside that learning part, जिसे हम learning कह रहे हैं ना, classifier, the model which is actually trained or learned for classification kind of thing or regression kind of thing, तो खाली वो काम नहीं है। now our current networks जो है वो केवल लर्निंग वाला काम नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो डूइंग वॉट, their first part or the first stage is actually doing the work of प्री प्रोसेसिंग ऑल्सो, ठीक है। सो वो प्री प्रोसेसिंग वाला काम भी कर रहे हैं, ठीक है। so that is the good thing about the uh, deep uh, deep networks or the deep architectures or the deep learning models, ठीक है। so what is happening is कि वो now वो जो प्री प्रोसेसिंग है फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, that is one part of those deep models, deep architectures. That is a good thing about that. So all those deep architectures are actually the extension of the neural networks, ठीक है, artificial neural networks, ठीक है। So what happens is now we have more sophistication in coding for those deep architectures, ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर to sophisticate the deep architecture, some more advanced libraries were created, ठीक है, which have more support, ठीक है। So these TensorFlow and Keras means actually we have now two new libraries, ठीक है। So these are the libraries which have more support towards the neural network and the deep neural network or the deep architecture, deep learning models, ठीक है। So this is the idea of using the TensorFlow. So for our current examples of the artificial neural network and the deep learning model, we will be using this TensorFlow and Keras. So the very important, first important thing is exactly what are these? Are these two parallel libraries? Okay. इनमें difference क्या है? What was actually the difference? Usually, if we try to see the TensorFlow and Keras, so is something means they are not the two parallel libraries, rather TensorFlow is the basic library, okay, is actually the basic library which was first created, okay, and uh, and that means looking over the deep learning models, okay, looking over the deep learning models means this TensorFlow library was created, okay, to provide more sophisticated or more support to sophistication, more support to these deep learning models, okay. Now, the very good thing about the TensorFlow is it is open source platform, ठीक and that is what it makes its popularity extremely vast, ठीक and that is how it is more supportive, ठीक you have more support available for the TensorFlow, ठीक we actually have Git repositories for the TensorFlow, and certainly we have lot number of commits in those Git repositories, ठीक So this actually tells us आज इतनी बात से नहीं ले रहा है how much popular थे ना how much popular अगर दमदार होते हैं TensorFlow, तो आदमी के मन में अब ऐसे निकले कि आज पॉजिटिव निकले तो ठीक है। So then if we correspondingly we try to see the Keras, so Keras is actually a API, ठीक है। So it's an interface between this library and the application. So it's a high level API above TensorFlow, ठीक है। So this is a high level API built above TensorFlow. That's the difference actually. So basically when we say we are using the Keras means, so underlying we are using the TensorFlow only, ठीक है। So that is the important thing. So it is something like this means underlying functions are TensorFlow functions and Keras is like an interface, ठीक है, is like an high level interface, ठीक है, that's the thing. So this is the actual difference, right? This is the actual difference, okay. So if we
look more details of this TensorFlow. So it's an is given by Google, okay, and is more powerful in deep learning pursuit than TensorFlow. It's open source. We had actually seen this, right? And the important thing about this is means it's easy to actually build applications. See, means compared to rest other kind of the libraries. So we have many parallel libraries compared to the TensorFlow, which are actually used for developing the deep learning applications. ठीक है? So TensorFlow के parallel और ऐसा नहीं है कि खाली TensorFlow ही है means neural network and the deep learning model design करने के लिए. So there are few more. जैसे as we have, there is a cafe library, there is a piano library, there is a talk library. ठीक है? So we have many other libraries also being developed by other bigger players. So but anyhow, compared to that, this TensorFlow has got more popularity since TensorFlow provides lot many APIs for all different kind of the language platforms. Okay? So TensorFlow means it has a wider support to all kind of the languages. So you can use TensorFlow with Python, you can use it for with C, C++, with newly arrived means very specialized language environment, जैसे R, ठीक है? It is working with Java also, ठीक है? So all those kind of the support now, and you can make you can use this library, the functions can be used of TensorFlow libraries to develop any application in any of the background operating system environment. Let it be for Android, Mac OS, or Windows, or Linux, or any kind of the OS. So it means it has a wider support to maximum of the platforms. And there is again the very important thing is, so with many other libraries, what happens is there are the constraints on or the restrictions on the processing power. Means so they have the constraints के इतनी processing power की is the compensation के इतना होगा तो ही चल पाएगा TensorFlow आप यूज कर सकते हैं. मीन्स वो दूसरी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं आप, डीप लर्निंग लाइब्रेरी. बट TensorFlow के साथ there is no such problem. So you can run it on any kind of the device. ठीक है? So let it be your desktop machine, let it be your high-end workstation, let it be your laptop machine, let it be your handheld devices, mobile devices. So even we can run this TensorFlow on a smartphone. ठीक है? तो मोबाइल डिवाइस पे भी आप चला सकते हैं. सो यू हैव द लाइटर वर्जन ऑफ द TensorFlow अवेलेबल फॉर द मोबाइल. ठीक है? सो यू कैन मेक द AI enabled applications for the Android platform. ठीक है? To be run on the mobile devices. That's the good idea of it. ठीक है? I will give you one example. Means we created one means intelligent agent. ठीक है? And that agent is mobile based agent actually. ठीक है? Means that's an Android application and it uses that TensorFlow. ठीक है? So this is the good thing about the TensorFlow, and is getting highly used by more bigger players in the domain. Let it be the NASA is using it for means predicting the near Earth objects. The bigger companies like Airbnb, Airbus, Dropbox, Snapchat, Uber, all are these using it. So this is good thing about the TensorFlow. But what about the Keras? So actually using TensorFlow directly means functions of the TensorFlow. So again, is like other library means you have to have some complexity in writing functions, remembering all those functions and many other things. Okay. But what happened next is actually interface. High-level interface is created for this library as Keras. Okay. So this Keras is a high-level interface created above TensorFlow and Theano. Okay. So now this interface provides a bit more flexibility in coding, in prototyping any program, any software. Okay. So होगा क्या कि means writing program and using the TensorFlow function, it would take more time compared to if we use the Keras. Means Keras have more user-friendly kind of
the functions at that interface. ठीक है? So it is more easier to write the things and develop the things and prototyping the things. This is about the thing. So this is what a difference. If we talk about the salient feature of the Keras, means it's a high level interface. Then it runs smoothly on both CPU, GPU, supports almost all models of the neural network. Okay, that's good of it. Then it's modular in nature. It's more expressive and flexible. Okay, and since Keras is Python-based framework, so it is easy to debug. Okay, and explore. Okay. So this is about the Python means TensorFlow and Keras. Okay. Now, which problem we will be taking it here for exercise? So we actually had chosen 3 problems. Okay. So one is the digit classification. One is the digit classification. So let's say we have handwritten digit classification, rather I should say. Okay. So we have digits from 0 to 9 means 10 digits. यहाँ पे केवल actually 9 दिखाए हैं, images नहीं दी, ठीक है. So 10 digits from 0 to 9 handwritten, ठीक है. Now if you want to recognize them, so means हो सकता है कि अगर अलग-अलग स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है, means digit 2 is written in different ways, ठीक है. So certainly for a person knowing only one script, one language is not, we will not be able to means recognize the 2 of other script, ठीक है. So what we can do, we can actually use machine learning model. So what we can do, we can have a repository of such images, okay, digit images, and then we can apply the neural network for it. Okay. So this we will see. Okay. So actually, what we have this kind of data set. Okay. So there is a data set called as an MNIST data set. Okay. MNIST digit data set. And the good thing is it is available in the repository of the Keras itself. Okay. So there is a repository data sets in the Keras. Its MNIST data set is available there. Okay. किस किस तरह की इमेज जो सैंपल्स हैं, सैंपल किस तरीके के हैं? So samples are an image form of size 28 cross 28. ठीक है. So हर एक जो image sample है is corresponding to one digit, it's of the size 28 cross 28. And the label, there is one label to it. ठीक है. 28 cross 28 input and there is one label. So means कौन सा digit actually means is written here in this image. ठीक है. So that will be the output label. Okay, that will be the output label. So exactly what happens is since 28 cross 28 की image है, so how many number of the input feature we will be providing? So this total number of pixels here, 28 cross 28 will be 784. So 784 pixels intensity will be used as the input to the artificial neural network. Okay. We will have we have another example of this. There is one more data set. So actually, the examples I quoted here is for which the data set is available there in the Keras itself. ठीक है. तो Keras में एक और data set है Cypher 10 करके. Its name is Cypher 10. ये किस तरह का data set है? So it's a data set of 10 classes of object. और वो कौन कौन सी classes हैं? वो ये aeroplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck. But the difference here is from the previous one, it's similar to that. पर यहाँ पे क्या है, ये जो digit वाला जो data set है, ये क्या है इसमें जो है images में जो pixel intensity, so actually image कैसी है? It's a 2-dimensional image. ठीक है. It's a 2-dimensional colored, I mean grayscale image. ठीक है. Whereas ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Cypher 10 में ये जो images हैं, these are colored images. These are colored images. मतलब third dimension is of the color palette, that is RGB. ठीक है. RGB colors. Yes. So 3 dimension means so this is colored, so a bit complex compared to the previous one. तो यहाँ पे 2 dimension में data set है और यहाँ पे 3 dimension, so a bit complex is there to process it. ठीक है. So we have that. Then there is another data set is called as a fashion MNIST. ठीक है. तो इस fashion MNIST data set में क्या है कि we have the images of the fashion items. Fashion items means as what we wear. ठीक है. So shirt, t-shirt, other kind of the dresses for ladies and male, female,
the shoes, all these kind of the fashion objects, ठीक है. So this fashion MS data set actually contains that, ठीक है. So we will see, ठीक है. Let's take the example one by one, ठीक है. तो चलो. uh, so what we will do is for this, अच्छा now जैसे मैंने कहा कि since now we are using the TensorFlow and the Keras, अब एक्चुअली क्या था कि what I found is कि Anaconda में means it was a bit problem actually installing the TensorFlow package, ठीक है. So I tried a lot. फिर दूसरा मेरा नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क था, तो इस वजह से और थोड़ा इशू आ रहा था, ठीक है. But what you can do is if you want to do with the स्पाइडर पे आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं, स्पाइडर पे करना चाहते हैं, ठीक है. with Anaconda if you want to run. So simply what you have to do is कि उसके टर्मिनल में आप जाएं and there is let me write, just hold on, ठीक है. आप उसके टर्मिनल पे जाके just you have to give one command as this. आपका नेटवर्क ओपन नेटवर्क है तो क्या कर सकते हैं आप, you have to just give one command pip 5, ठीक है, and simply install sorry install TensorFlow, ठीक है. TensorFlow. So this way, just writing this, you will get actually your TensorFlow installed in that, ठीक है. हो सकता है उसमें थोड़ा इशू एनवायरनमेंट सेट करने का आएगा, एनाकोंडा एनवायरनमेंट सेट करने का. तो चाहे तो दैट्स अगेन इजी, एनाकोंडा नेविगेटर में जाके आप एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है. तो पर व्हाट आई विल डू इज कि क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सभी के लिए थोड़ा सा मींस इट वुड नॉट बी इजी टू डू दैट. सो नाउ एक्चुअली जैसे हमने पहले टर्न पे हमने देखा था, तो वी एक्चुअली हैव द ऑप्शंस टू कोड, ठीक है. एक तो चीज क्या है कि हमारे पास हमारा कंप्यूटर में रिसोर्स है, ठीक है, तो वी कैन डू इट ऑफलाइन, ठीक है. दूसरा क्या है कि आजकल इंटरनेट इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन हार्डवेयर रिसोर्स इज अ बिग इशू, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमारे गूगल की तरफ से एक फैसिलिटी है दैट इज अ कोलैब, ठीक है. दैट्स एन ओपन एनवायरनमेंट, जैसे हमने कहा था. तो हर वो चीज पाइथन में जो है जो आप एनाकोंडा पे कर रहे थे, वो सारी चीज मीन्स एज इट इज सेम वे वी कैन एक्चुअली डू इट ऑन, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू इज एंड सर्टेनली जैसे हमको लगता है कि वो ऑनलाइन है तो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, तो आपको पता होगा क्लाउड एनवायरनमेंट में हाउ द क्लाउड एनवायरनमेंट वर्क्स. तो क्लाउड एनवायरनमेंट कैसे काम कर रहा है, सी यहाँ पे आप ब्राउजर से आप you are actually writing the code and you are executing the code. Let me move to that, then it will be more clear, ठीक है. तो what we will do is कि हम कोलैब पे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है. अच्छा, let me start it from scratch, ठीक है. So what we will do for कोलैब, तो आपको अपना एक अकाउंट गूगल का खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है. एंड उसके साथ में आप कुछ नहीं करो, जस्ट मूव टू द गूगल एंड राइट कोलैब हियर, ठीक है. एंड वी विल गेट, अच्छा एक सेकेंड मैं शेयर कर दूँ अपनी न्यू स्क्रीन एक्चुअली दिस हियर, ठीक है. सो होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, ठीक है. my browser is visible to you all, is it? Hello, is my browser visible? Yes, yes, sir, yes, sir. So simply what you have to do, you have to just make your one of your Google account open, and after that you just have to have a search for collab in Google search. Yes, sir. The first result will make you to this site. So this window, what just you have to do is you can either click this welcome to collaboratory if you are new to it, और आपने पहले काम किया तो you can what you can do, you can click your exam, means आप यहाँ पे आपके recent जो notebook जिन पे आपने काम किया था वो आप खोल सकते हैं, ठीक है. So anyway you can do, ठीक है. Let me start with a new one, ठीक है. तो आपका कुछ इस तरीके से कुछ दिखता है कोलैब, ठीक है. So
you can start doing the coding here, ठीक है. Code means adding a section for the code, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. What I can do, अब मैं एक काम करूँगा कि I can go for a new notebook from here, ठीक है. So file, go for a new notebook and it will open a new notebook for us, ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक और फैसिलिटी क्या है कि सिंस इट्स अ गूगल क्लाउड एनवायरनमेंट एंड गूगल गिव यू मोर क्लाउड फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ योर मेल पे सारा आपका ऑल दोज मेल डेटा इज एक्चुअली वो आपका एक आप यू गेट एन स्टोरेज देयर ऑन द गूगल क्लाउड, ठीक है. आपके ड्राइव यू हैव अनदर फैसिलिटी एज एन स्टोरेज यू गेट, ठीक है. तो सेम वे हियर व्हाट वी हैव इज कि आप जो भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज सिंपली सेव्ड हियर इनके ही एनवायरनमेंट में. चाहें तो आप उसको उसकी एक कॉपी जो है आप अपने आपका जो ड्राइव है गूगल ड्राइव उस पर भी शेयर कर सकते हैं. सो यू कैन हैव इट अ कॉपी देयर टू, ठीक है. तो इधर से उधर कहीं ले जाना है तो दैट्स द थिंग. So this is how your means a new file look like, ठीक है. So now what we can do is we can start writing the code, ठीक है. तो exactly what क्या है जो हम बात कर रहे थे कि क्या this will हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो टाइम का डिफरेंस होगा कि जैसे हम उस पर करते हैं मीन्स ऑफलाइन मोड में करते हैं. तो एग्जैक्टली कि यहाँ पे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा. वाई सो? क्योंकि एग्जीक्यूशन इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द गूगल क्लाउड, ठीक है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सो ओनली द डेटा रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम, ठीक है, सेगमेंट इज एक्चुअली you are writing and once you are making it for execute, ठीक है. तो क्या होता है कि that relevant data, ठीक है. सो आपका एक सबलेट यहाँ चल रहा है, उसका एक जो सबलेट आपका वहाँ भी चल रहा है क्लाउड पे, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज इनके डेटा सेंटर पे मतलब सो देयर इज अ डायरेक्ट सेशन बीइंग क्रिएटेड बिटवीन टू, ठीक है. तो एग्जीक्यूट आपका वहाँ होगा, राइट आप यहाँ करेंगे, ठीक है. so it's just the data which is being transferred, rest everything happens there, ठीक है. so that won't take much time, ठीक है. उतना ही टाइम अभी हम देखेंगे यहाँ पे, और आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज भी किया होगा, ठीक है. so let's say we go for the example of digit classification, ठीक है. तो digit classification में हमको क्या करना है, so we have to very first thing we have to do is कि we have to import the warnings, ठीक है. so import warnings, then means filter those warnings, ठीक है. so means just if there arise any uh, means unwanted execution kind of thing, so it will actually return those warnings, ठीक है. so this is for that, ठीक. now what I can do is कि if since it is easy to work out on Google Colab, तो आप चाहें तो आप पैरेलली मेरे साथ खोल के अपने मशीन पे भी कर सकते हैं. so it will be more interesting I think if you do. and for your support what I will do is कि जो कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम आई विल बी कॉपिंग इन द चैट बॉक्स. तो आप लिखना थोड़ा आपको मुश्किल लगे तो व्हाट यू कैन डू इज कि मैं चैट बॉक्स में जो कॉपी कर रहा हूँ वहां से आप कॉपी करके इंस्ट्रक्शंस को चलाते रहिए, ठीक है. let's do this. so is that good to go? हेलो, Yes, sir. ऐसे ऐसे जाना ठीक रहेगा. so Yes, sir. instructions I will be writing here on your chat box and from there you copy and actually paste and run it, ठीक है. Okay, sir. so where is the chat box? here. so let's say if we do it, so we can see we execute this is अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो
यहाँ हम अगेन इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को. नाउ सी हैपेंस व्हाट हैपेंस व्हेन आई एग्जीक्यूटेड माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया वो उसने कैलकुलेट करना चालू किया, मींस रैम एंड द मींस द स्टोरेज एंड द सीपीयू रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने दिखा दिया, योर प्रोग्राम विल बी यूजिंग दिस मच. ठीक है, रिसोर्स. ठीक है, एंड नाउ दिस इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, so the next thing is we have to import keras. ठीक है, then we can also do importing the numpy. ठीक है, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होंगे numpy as np. So again Colab is also having a good support for the suggestions. ठीक है, तो ये भी यहाँ भी अच्छी बात है ये. ठीक, then what we will do is we will be importing the data set. ठीक है, data set is where keras dot data sets. ठीक है, sorry, what we will do from we will import the specific data set na. So from keras dot data set import mnest. ठीक है, then what we will do is we will import the matplotlib from matplotlib dot pyplot import sorry import this pyplot as plt. Okay. We create an object of it. Okay. Then after that then we import the एक काम करें, चलो ठीक है, चलो एक्चुअली क्या होगा. तो ठीक है, अभी हमने क्या किया कि अब हमने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया. देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज कि आपने हालांकि केरास इंपोर्ट कर लिया तो वी कैन यूज सारे अलग अलग जो लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस को लाइब्रेरीज को अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है केरास के अंदर की, क्योंकि मीन्स वहाँ पे हम जो भी फंक्शन आपको चाहिए, सो दिस केरास डॉट समथिंग, जैसे आपको हमको चाहिए होगा मीन्स मॉडल हमको देखना होगा, तो मॉडल और सीक्वेंशियल मॉडल हमको चाहिए होगा, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक साथ सारे इंपोर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से यहाँ ही कर लेते हैं, चलो ठीक है. so from so one of the thing is we have to actually import the model. So keras dot models. ठीक है, so from this import what, so the model we will be using a sequential model. ठीक है, yes, sequential model of the artificial neural network. ठीक, then what we will be using, we have to define the layers. ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क में क्या है, so we have the layers अलग अलग तरह की. ठीक है, तो then we have to import that. ठीक है, so what we will do is keras dot layers import, so we will be using the dense layer. ठीक है, ठीक है, so then after that simply फिर हमको एक्चुअली जब मॉडल फिट करना होगा तो हमको एक काम और करना है कि वी हैव टू कॉन्फ़िगर मींस मॉडल के जो जो फंक्शंस हैं. ठीक है, मॉडल जब हम फिट करते हैं तो मॉडल के फंक्शंस को हमको कॉन्फ़िगर करना होता है. तो जैसे हम एक्टिवेशन फंक्शंस वहाँ देते हैं. ठीक है, दूसरा हम जो है ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करेंगे. हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री थिंग्स. वन इज representation, means it's mathematical model, mathematical modeling of it.
सेकंड इज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो मीन्स जो एरर कैलकुलेशन कैसे है, ठीक है। सो हाउ दिस एरर रिडक्शन की अप्रोच कैसे है, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजर, ठीक है। एंड तो इसीलिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्चुअली import the optimizer actually, ठीक है। So dot optimizer, ठीक। From this import optimizer हम import करते हैं RMS, ठीक है, root mean square propagation, ठीक है। So this is here, and then simply what we can have is okay, now we can move forward. So let's say we executed what we find. So means this is all okay. There is no error executing this. So means this is all okay. I'm putting it in your chat box. You can copy and paste and run it. Right? Now the next thing is what we will do is okay, अब जो है हम अपना डेटा सेट लोड करेंगे, ठीक है। So what we have is something like this: x train, comma y train. So we have the training data set is divided into two, ठीक है, and that is x train y train and x test y test, ठीक है। तो इस तरीके से हम we can write it simply what, so लोड करेंगे that एक्चुअली है क्या, जो कैरास में किस तरीके से डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो वहां पे डिवाइड करके ही पड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो डेटा सेट है वहां पे ट्रेनिंग उसमें ऑटोमेटिक वहां पहले से ही दे रखा है कि इतने सैंपल्स ट्रेनिंग के लिए, इतने सैंपल्स टेस्टिंग के लिए। So simply loading itself will give us the bifurcation of data set into two. So यहीं पे हम सीधे लोडिंग के टाइम पे ही हम ये जो है सेट हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर द ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग, ठीक है। तो सिंपली व्हाट वी विल डू इज कि एमएस डेटा सेट, सॉरी उससे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, ठीक, वी कैन डू इट दिस वे। सो एमएस डॉट लोड डेटा, ठीक। So this will do the thing, ठीक। Then so this will load this data and then we can operate on this data। तो अगर अभी हम देखें, लेट्स से हमने ये कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको देखें एक्स ट्रेन हमारा, या हम कोई एक डेटा सेट को देखें कि वो किस तरीके का लग रहा है, तो वी कैन चेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक्स टेस्ट देख लें, ठीक है, और एक्स टेस्ट डॉट एड एरे, एरे पर काम करेगा क्या, टेस्ट equal to x test, I don't know whether this function head function will be working. Actually head function काम नहीं कर रहा, मींस हाउ मेनी सैंपल यू वांट टू डिस्प्ले हियर, वो हम यहाँ देखना चाहते थे, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। एक्चुअली ट्रेन एंड टेस्ट is split it this way, and then after that what we can do is कि अगर हम यहाँ देखना चाहें कि हाउ दिस एक्स टेस्ट लुक लाइक, एक्स डेटा किस तरीके का है, ठीक है। सो वी रन इट, तो कुछ इस तरीके का है, पर यहाँ एक्चुअली इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें जो वैल्यूज हैं, वी हैव वैल्यूज 0 1, ठीक है। तो 1 वाली वैल्यूज एक्चुअली दिख नहीं रही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वी कैन सी इट, ठीक है। हम उसको प्लॉट करा के देख सकते हैं इमेज की फॉर्म में, ठीक है।
चलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। Then what we do is, if we load this data, then after that we actually have to, क्योंकि ये डेटा जो है कैसा है, दिस डेटा इज एक्चुअली, हमने जैसे कहा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, मीन्स ये जो है कितने साइज का डेटा है, जैसे ये दिखा रहा है नाउ, द शेप ऑफ दिस, तो दिस इज एक्स टेस्ट इज 28 क्रॉस 28 के कितने 10,000 सैंपल्स हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से एक्स ट्रेन को देखें तो, so there are 60,000 samples of this size 28 cross 28। या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे शेप देख सकते हैं, x train dot shape, ठीक है। इसको रन अगर करा के देखें तो we will get it shape। Actually what we have to do is we have to print it, I think, then it will, yeah, it is shown, ठीक है। what it shows कि ट्रेन सैंपल जो हमारा मीन्स ट्रेनिंग डेटा जो है, ये एक्स ट्रेन वाला कैसा है, दिस 28 क्रॉस 28 एंड 60,000 सैंपल्स, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि 28 क्रॉस 28 मींस इट्स अ 2 डायमेंशनल डेटा, और इनपुट हम कैसे देंगे, इनपुट 2 डायमेंशनल कैसे जाएगा, इनपुट तो 2 डायमेंशनल नहीं जा सकता, तो इनपुट तो हमारा 1 डायमेंशन में ही जाएगा, ठीक है। भाई हमने देखा था कि ये जो है हमारा हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसा है, न्यूरल नेटवर्क अगर मीन्स कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो इनपुट इनपुट कैसा है, इनपुट कुछ इस तरीके का होगा, x1 x2 x3 कुछ इस तरीके से x4 x5, ठीक है। तो यहाँ पे दिस x इनपुट वेक्टर जो है n डायमेंशन का, ठीक है, पर नॉट n डायमेंशन, n स्केलर वैल्यूज का, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है इट्स अ 1 डायमेंशन वेक्टर ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से जो है, हमको तो कुल मिला के ये जो डेटा है हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट करना पड़ेगा 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन, एंड देन वी कैन मेक इट एज एन इनपुट टू द न्यूरॉन्स, ठीक है, फर्स्ट लेयर न्यूरॉन्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू, सो वी हैव टू एक्चुअली फ्लैटन इट, ठीक है, वी हैव टू एक्चुअली फ्लैटन इट मींस रीशेप करना पड़ेगा, ठीक। सो लेट मी write it in, so what we will do is, so we will reshape it, ठीक है। हमने इसको यहाँ रीशेप कर दिया, ठीक है। तो एक्स ट्रेन के सैंपल जो होते हैं हमने हमने 60,000 कॉमा 784 28 को 28 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके फ्लैटन कर दिया इनको, ठीक है। सो 2 डायमेंशन की जगह हमने 1 डायमेंशन कर दिया, एक्स ट्रेन और एक्स बोथ बोथ बोथ। देन व्हाट वी डू इज कि हमने ये जो है इनको फ्लोट असाइन कर दिया, अभी तक ये यू इंट थे, ठीक है, अब हमने इनको फ्लोट असाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी हम ये जो इंटेंसिटी वैल्यूज होंगी हर हर 784 जो पिक्सल वैल्यूज हैं, इनकी जो वैल्यूज क्या होगी, इंटेंसिटी वैल्यू कुछ होगी, पिक्सल की वैल्यूज हर एक 784 में से हर एक पिक्सल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इट विल बी लाइन फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, नाउ वी एक्चुअली नॉर्मलाइज करेंगे, जिससे कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो नॉर्मलाइज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, जब ये ऑपरेट होगा हर एक नेटवर्क पे, वो फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन जब लगेगा वेटेड सम पे, तो क्या होगा कि दिस वैल्यू ये अनबाउंड चली जाएंगी वैल्यूज, सो ऑल दोस दैट वी हैड डन, वो आप कुछ नहीं करो, प्रिंट नहीं तो यहाँ पे खाली लिख दो तो वो दिखाता है, वी हैड डन दिस, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि फिर हम जो है यू इन से इसका टाइप चेंज कर लेंगे सच दैट कि आर वैल्यूज विद इन द ट्रेनिंग दे रिमेन्स बाउंडेड, ठीक है। सो दिस वी हैड डन, वी विल डू, और फिर क्या करेंगे, ये एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन को वी विल डिवाइड दीज वैल्यूज बाय 255, ठीक है। इसी तरीके से एक्स टेस्ट,
let's check how it goes. So no error, so means this is perfect till here. Okay, so just copy it and run it. Okay, at your side. Once this is done, then what we will do is कि अब जो है हम जो हमारे जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट लेवल्स, ठीक, आउटपुट लेवल्स को हम जो है कैटेगरिकल कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से इफ वी ट्राई टू सी आउटपुट लेवल्स हैं किस तरीके के, ठीक है। सो वाई टेस्ट को अगर देखें तो हाउ दिस वाई टेस्ट लुक लाइक, ठीक है। सो सी हियर व्हाट इट शोज कि आउटपुट लेवल अगर हम देखें तो आउटपुट लेवल एक्चुअली जो है ये दीज आर शोन एज द वैल्यू, ये क्लास वैल्यू है ना। So it is shown as कि हर एक सैंपल की करस्पॉन्डिंग की that it belongs to class 7, it belongs to class 2, it belongs to class 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आउटपुट वैल्यूज हैं मींस उनको वी हैव टू मेक इट, सॉरी, तो ये जो है कितनी क्लासेस, ठीक है। सो वी हैव टू डिफाइन द नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। सो लेट से अगर ये सारी क्लासेस हैं यहाँ पे, ठीक है, देन इट इज ओके। सो इवन व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन एक्चुअली टेल और वी कैन फिक्स द नंबर ऑफ क्लासेस हियर कि हमारी ये कितनी क्लासेस इस डेटा सेट में है, मीन्स आउटपुट में है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि ये हमारा जो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में आउटपुट है, ठीक है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो सिंपली व्हाट वी कैन मेक इज कि हम इसको जो है कैटेगरिकल बना के एंड वी असाइन द कि कितनी क्लासेस होंगी इसमें। तो 0 to 9 क्लासेस, ठीक है। नम क्लासेस मतलब मीन्स वी कैन either write it here as means how many classes, 10 classes, right? Achha, it is privately, sorry, to all it should be done, everyone in the meeting. अच्छा, okay, sorry dear, sorry, अभी पीछे वाला सारा प्राइवेटली ही जा रहा था क्या? No, sir. It was for everyone. hold on, I'm sending, ठीक है। So this is here, ठीक है। So then what we will do is now we can actually now is the time to actually create the model, ठीक है। So how we will be creating the model, it's simple, ठीक है। So model किस तरह का, sequential, sequential, then after that, so we had created a model which is sequential in nature, means a sequential name for term used for that basic neural network multi-layer perceptron is sequential, ठीक है। So it's a sequential model. Sequential means here the layers are added sequentially, mean neurons and the layers are added very sequentially, ठीक है। Then what we do, we have to, in this raw model, now we have to add the layers, ठीक है। We have to add the layers, ठीक। So how we will be adding the layers? So yes. So this is here means
we have to take so this is the first layer we had actually added, ठीक है. So our layer is, जैसे हमने ऊपर देखा था कि वो हमने लेयर किस तरह की इंपोर्ट करी थी, डेंस. तो हमने कहा कि ठीक है, डेंस का मतलब क्या है कि डेंस में सारे कनेक्शन कैसे होंगे, these will be mass connection, ठीक है. तो पिछली लेयर से और आगे वाली लेयर से all connection will be mass, ठीक है. इसलिए this dense layer we had added. So first layer is dense layer and the size is, let's say we take a layer of 32 size, ठीक है. Means layer of one layer with 32 neurons, ठीक है. एंड एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लिया, हर एक मींस न्यूरॉन का उस लेयर में सिग्मॉइड, ठीक है. एंड इनपुट साइज मींस, अब एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्योंकि फर्स्ट लेयर है तो किस तरह का इनपुट आएगा, मींस एवरी ऑफ द न्यूरॉन हियर विल बी रिसीविंग हाउ मेनी इनपुट्स. तो इनपुट साइज यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, 784, ठीक है. क्योंकि हमारा कितना इनपुट आ रहा है, ये हमारा हर एक इमेज में कितने फीचर्स हैं, 784, ठीक है. तो इनपुट साइज हमने डिफाइन कर दिया 784,1 मींस वन डायमेंशनल 784 इनपुट्स, ठीक है. देन सिंपली व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि अब जो है इस तरीके के और लेयर वी विल बी एडिंग एज अ हिडन लेयर, ठीक है. सो ये भी हिडन लेयर है, ठीक है, क्योंकि इनपुट इससे आगे है, इससे आगे इनपुट है, बाकी दिस बिकम्स अ हिडन लेयर, ठीक है. सेकंड हिडन लेयर इज अगेन द सेम, पर अब इसमें क्या है, आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. You don't need to give the input shape, क्योंकि अब जो है पहली लेयर के बाद जितने आउटपुट आएंगे, मींस फर्स्ट लेयर के बाद कितने आउटपुट 32 होंगे, हर एक मींस हर एक न्यूरॉन विल बी गिविंग वन आउटपुट. तो नेक्स्ट लेयर न्यूरॉन पे जो कितने इनपुट होने चाहिए, 32 इनपुट, ठीक है. तो या तो यहाँ लिख दो या नहीं लिखो, तो इट विल टेक ऑटोमेटिकली, क्योंकि फर्स्ट लेयर से पता है कि फर्स्ट लेयर के सारे आउटपुट जो है हर एक न्यूरॉन को यहाँ आएंगे सेकंड लेयर में. दिस वी कैन डू. अब हमको कितने और इस तरह की लेयर्स लगानी है, दिस वी कैन डिसाइड, कि हमको 2 लेयर लगानी है कि 3 लेयर लगानी है, दिस वी कैन डिसाइड, ठीक है. तो हमने कहा कि चलो वी ऐड वन मोर लेयर, ठीक है. जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज ठीक. देन व्हाट वी हैव टू डू, सो दिस इज डन. अब इसके बाद जो आउटपुट आएगा इस लेयर के बाद वो कैसा होगा, इट विल बी नॉर्मल आउटपुट, ठीक है. अब हमको क्या चाहिए कि वी वांट द आउटपुट व्हिच इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है. हमको कैसा आउटपुट चाहिए, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, वी विल ऐड वन मोर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज सॉफ्टमैक्स लेयर, ठीक है. तो सॉफ्टमैक्स लेयर हम ऐड करेंगे, मतलब मींस लेयर कुछ इसी तरह की होगी, और लास्ट लेयर में, लास्ट लेयर पे होगा, मींस वो दैट विल बी एट द आउटपुट लेयर, ठीक है. और आउटपुट लेयर पे कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, भाई जितने हमारी आउटपुट क्लासेस हैं उतने न्यूरॉन्स होने चाहिए आउटपुट लेयर पे, ठीक है. तो आउटपुट लेयर पे कितनी क्लासेस हैं, मींस आउटपुट क्लासेस कितनी है, 10. सो वी विल हैव द न्यूरॉन्स हियर, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट द आउटपुट क्लासेस इज 10. एंड यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट हमको कैसा चाहिए फाइनली, दैट इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, वी विल हैव इट एज एक्टिवेशन एज सॉफ्टमैक्स, ठीक. सो दिस इज हियर, this is it. And this the model configuration is done, okay. So you can copy this, okay. Let me run it, what it shows. So meaning that it executed without an error, means that model is correctly number of neurons, how can we decide, and number of hidden layers. So again this is a big good question at the means logic part, ठीक है, और the algorithm part, ठीक है. देखो ऐसा है कि this we can decide, so there is no fixed rule for it, there is no means guiding rule, ठीक. अब ये कैसे पता चलता है कि अब नहीं है क्या, see न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ और दिस काइंड ऑफ क्लासिफायर, इसमें क्या आउटपुट आएगा ये किसी को नहीं पता. सो दीज मॉडल्स आर वेरी रैंडम मॉडल्स. ये मॉडल्स कैसे हैं, रैंडम मॉडल्स हैं,
and you get reaches to a correct result by training it and means iterating for the training, ठीक है, iterating it for the correct result, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे मॉडल पूरा का पूरा रैंडम है, तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यू शैल टेक, हाउ मेनी हिडन लेयर वी शैल हैव, सो दिस इज टिपिकली रैंडम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब हर चीज रैंडम नहीं हो सकती, कुछ चीजें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग वी गेन बाय एक्सपेरिमेंटिंग मेनी टाइम्स। अब जैसे हमने कहा हमारा मॉडल, हमारा जो डेटा सेट कितना साइज का है, कैसा डेटा सेट है, ठीक है। So this we decide through looking over the data set, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे हमारे को 60-70 हज़ार सैंपल्स थे, इतना क्लासेस थी, इस तरह का डेटा था, बाइनरी डेटा था या ग्रे स्केल वाला डेटा था, मीन्स इतने इनपुट फीचर्स थे। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली डिसाइड समथिंग ऑन इट, ठीक है। तो हमने कहा 784 फीचर्स आ रहे थे, तो 784 इनपुट है, तो हम वी कैन थिंक ऑफ हैविंग द न्यूरॉन्स एट वन लेयर समथिंग मीन्स मीन्स 1/10 ऑफ द साइज समथिंग, 1/10 1/15 साइज, ठीक है। तो उतने से हमारा मीन्स वी कैन डू द जॉब, ठीक है। तो एक एक टिपिकल जो केस जैसे हम रखते हैं कि अगर हमारा सिंगल न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन है, ठीक है, इस परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं, तो एक एक न्यूरॉन पे हम इनपुट कितना लेते हैं, हम 10 से 12 15, ठीक है, फीचर्ड एज द इनपुट वी टेक एंड वी डू द क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट, तो यहाँ पे 30 से 50 70 के आसपास तक आप लेंगे, तो इट विल बी गुड रैंडम इनिशिएशन, ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्टिव। अब फिर हमने कहा कि कितने हिडन लेयर लें, तो सो अगर आप एक हिडन लेयर लेंगे, सो सर्टेनली क्या होगा, तो आपका जो एक्यूरेसी जो है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी विल नॉट बी वेरी गुड, ठीक है। आप सारे ट्रेनिंग सैंपल्स को भी चला देंगे, फिर भी ट्रेनिंग एक्यूरेसी सही नहीं आएगी, ठीक है। सो कुछ ना कुछ एक्चुअली है क्या, सो व्हाट इज दिस एडिंग एक्चुअली, इतने सारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और हर न्यूरॉन पे आपको कोई एक्टिवेशन फंक्शन है, इट इज नॉन लीनियर इन नेचर। सो एक्चुअली है क्या, ये जो न्यूरल नेटवर्क है, सो इट इज a high and non-linearity actually it is giving you as which actually is utilized for deciding the the output of the classification, ठीक है। तो ये रैंडम नॉन लीनियरिटी वी आर क्रिएटिंग इनसाइड इट। तो हम किस लेवल की रैंडम नॉन लीनियरिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सच दैट अब वही है, मीन्स अब आपके पास ट्यूनेबल पैरामीटर, आप ज्यादा लेयर ऐड करेंगे, सो मोर नंबर ऑफ ट्यूनेबल पैरामीटर्स यू विल हैव, सो मोर नंबर ऑफ पैरामीटर, certainly there will be more probability of there will be more probability of means आप ऐसा है, मीन्स आपके पास अगर 10 चीज हैं, ठीक, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन मेक ऑफ इट, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ इट, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए तो परम्यूटेशन ज्यादा हो जाएंगे, सो यू गेट मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू द मोर गुड रिजल्ट, least error, ठीक है। So this is what the thing, so actually so this on the number of neurons in the hidden layer, this is by you can say you try it and go for it, ठीक है। So this is hit and trial, and then through experience you decide upon it, so there is no means fixed rule for it। Certainly we randomly try it for some numbers, ठीक है, and then we check on कि अब और क्या change करेंगे, we can actually improve, ठीक है। So this is the thing, ठीक है। And then once we do it for many times, we do many experiment, तो हम we can then gain an idea कि हमारा जो start हम किससे करें, ठीक है। So what should be our initialization, तो वो we can get an idea by this kind of experience, ठीक है। All right, the next thing is now we have to actually then we can actually see the model summary, ठीक है। Let's see, ये हमने मॉडल बनाया, तो ये मॉडल डॉट समरी, ठीक है, we can see the model summary, ठीक। तो ये मॉडल में कितने पैरामीटर्स थे, क्या क्या है, मॉडल समरी यहाँ पे जस्ट मेकिंग दिस वी कैन सी द टोटल मॉडल। तो कुछ मॉडल इस तरीके का हमारा ये दिखा जो हमने मॉडल बनाया। अब दिस इज रॉ मॉडल, ठीक है, इसमें क्या क्या है, हमने पहली लेयर डेंस लेयर ली थी, ठीक है, फिर 32 साइज की,
फिर second layer 32 size, third layer 32 size, and fourth layer is an output layer with 10 number of neurons. Now see the total number of parameters. कितने पैरामीटर्स होंगे, हियर दिस कैन कम, ठीक है. सो हर एक लेयर पे कितने पैरामीटर्स होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे पूरे नेटवर्क में जो ट्रेन होंगे, दैट इज एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. कि हम कितने पैरामीटर्स आपको अपडेट कर रहे हैं, दैट डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, ठीक है. तो दिस इज हियर. तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हियर विल बी फर्स्ट लेयर पे 25120. कैसे आया, ये ऐसे आया. देखिए हमारे पास टोटल नंबर मींस फीचर इनपुट किस तरीके का था, 784 एंड मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, 32, ठीक है, एक लेयर पे. तो दिस इज 25088, ठीक है. अब 25088 में आपने 22 ऐड करने हैं, 32 न्यूरॉन्स के 32 22 भी तो होंगे, तो प्लस 32. तो दिस बिकम्स 25120, ठीक है, 25120. तो पहली लेयर पे इतने ट्यूनेबल पैरामीटर्स हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं. इसी तरीके से भी कैलकुलेट सेकंड लेयर पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 32 इंटू 32 प्लस 32 मीन 32 इंटू 33, सो 1056. ऐसे ही यहाँ पे 1056 एंड द लास्ट पे कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 प्लस 10, 10 22, so this is 330. So total number of parameters becomes this. Okay, so this is here. Now simply what we have to do is we have to actually compile the model for its loss function or optimizer and और इसमें matrices क्या होनी चाहिए, evaluation matrices, ठीक है. So this is our these are the loss function, optimizer and the matrix, ठीक है, matrices. So this is model.compile and then after that we actually fit it, ठीक है. Model.fit, ठीक. So let's you can run that model.summary, ठीक है. And then once we compile it and fit it, so let's see what is, does it get fit or not. Batch size 16 by 20 batch size. Actually what is the problem, this is the problem here. हमने batch size यहाँ define नहीं किया. Batch size हमने कहा suppose this is 128. ये batch size क्या होता है वो भी see. Epoch क्या होता है that we will see, ठीक है. So epoch, let's say 2 epochs and this here. So there will be any change if we take number of layers and number of neurons very large. Suppose we get accuracy 80%, taking 4 layers with 35 neurons each. Then increase the number of layers 40 and layers to 6. What will be the change in the accuracy? Will it increase or decrease? So you can't say anything. So see, if you increase the number of layers and the neurons in each layer, so what will happen? Finally, actually, what is happening is the total number of trainable parameters are increasing. That is the whole thing. तो अब ये बात है कि ये ऐसा नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स बढ़ने से क्या हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. सो दिस इज नो वेयर कन्फर्म, दिस इज नो वेयर गारंटीड कि आपकी आपने मॉडल का साइज बढ़ा लिया तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ ही जाएगी. दिस इज नो वेयर कन्फर्म, ठीक है. आपका अगर डेटा सेट आपका छोटा है, ठीक है, तो आप नेटवर्क आप कितना भी बड़ा कर लो, यू विल नॉट हैव योर एक्यूरेसी इंक्रीज्ड, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. क्लियर.
is this? Let me do once again ये सारा compile एक तरफ से. Now see here. Now see. So this is the important thing to see. So once I execute this, okay. So I fit means I assign the loss function optimizer in the matrix and then I fit that model. Okay. तो ये मॉडल को मैंने फिट किया विद गिविंग दिस इनपुट्स एक्सट्रीम वाइट रे एंड बैच साइज एंड इपॉक्स एंड ठीक है. तो व्हाट आई फाउंड इज दिस. ठीक है. तो ये मेरा ट्रेनिंग, ये मेरी ट्रेनिंग थी. अभी आपको स्टेप्स में ट्रेनिंग दिख रही थी वो. ठीक है. कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स जा रहे हैं. ठीक है. फॉर ट्रेनिंग. ठीक. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको. अब हमको दिखा कि एक्चुअली यहाँ पे दो आपको स्टेप दिखे. वन इज epoch 1 of 2, epoch 2 of 2. So this is means this is first epoch, this is second epoch. फर्स्ट epoch में क्या हुआ और दोनों epoch को कितना टाइम लगा. समथिंग 1 second 2 millisecond, 1 second 2 millisecond. तो दोनों में लगभग बराबर बराबर टाइम लगा. Now see every epoch of this fit means training. यहाँ पे it shows me क्योंकि हमने मैट्रिक्स ले रखी थी. सो इट शोज मी द लॉस एंड द एक्यूरेसी. ठीक है. तो पहली इपॉक में जो है ट्रेनिंग की पहली इपॉक में लॉस आई गेट इज 1.64 समथिंग एंड द करस्पॉन्डिंग एक्यूरेसी इज 0.48 मींस 48% एक्यूरेसी पहली इपॉक में. सी अब ये इपॉक का मतलब क्या है. सो वन इपॉक इज वन टाइम you had actually inputted all the training samples for training. ठीक है. सारे ट्रेनिंग सैंपल्स को एक बार आपने चला दिया फॉर ट्रेनिंग. तो दिस इज वन इपॉक. तो फिर आपने उन सारे सैंपल्स को दोबारा फिर अप्लाई किया फॉर ट्रेनिंग. सी होता क्या है. अब आपको लग रहा होगा कि आपने पहली बार चलाया तो फिर वेट्स जो थे वैसे दूसरी बार में वैसे ही वेट्स होंगे. वैसे वेट्स क्यों होंगे भाई. आपने जैसे ही पहली बार चलाया था. पहली बार चलाने का मतलब क्या था कि सबसे पहली बार में आपके वेट जो थे वो एकदम रैंडम थे, कुछ भी वैल्यू. तो आपने पहली बार ट्रेनिंग की, पहला इपॉक चलाया तो क्या हुआ उसकी वेट्स कुछ आए ना, कुछ हद तक ऑप्टिमाइज हुए. ठीक है. फिर तो वो जो लास्ट रिटेन्ड वैल्यूज थी उन वेट्स की वो वहां पे पहले इटरेशन के बाद. ठीक है. वो उतनी हो गई. फिर उसके बाद आपने फिर दोबारा एक और बार ट्रेनिंग सैंपल्स चलाए. तो अब जो अपडेट होंगे वो लास्ट रिटेन्ड वैल्यूज से ऊपर अपडेट होंगे. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई इट शोज कि क्या नाम है अब आपकी जो लॉस है वो लॉस फर्दर रिड्यूस हुआ और एक्यूरेसी फर्दर इंप्रूव हुआ. ठीक है. 0.78. नाउ इफ आई से कि अभी मैंने कहा कि मेरी एक्यूरेसी 0.78, क्या फर्दर आई कैन इम्प्रूव इट मोर और इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या. तो हमने कहा तो क्या करेंगे अगर फर्दर इम्प्रूव करने के लिए व्हाट आई कैन आई डू. तो the idea is कि we can actually make third epoch. Yeah, that's a good thing. We can try for third epoch. More epoch we can do. उसी सारे सैंपल चेंज नहीं कर रहे हैं. अब यू आर यूजिंग द सेम सैंपल्स फॉर इट. ठीक है. तो epoch मीन्स आप ट्रेनिंग फर्दर करो और epoch चला दो. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि एक बार दो epoch चल चुके हैं तो इसके अभी हमारे कुछ वेट्स मिल चुके हैं तो इसके ऊपर से एक आध epoch और चलाओ. लेट्स से मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो दो इपॉक और चलेंगे इसके ऊपर. ठीक है. सो वंस मोर आई एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो व्हाट विल आई फाइंड इज कि ये देखो. ठीक है. तो पहला लॉस कुछ और था. पहले एक्यूरेसी 0.78 थी. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 0.88 लॉस. फिर फोर्थ इटरेशन में फोर्थ इपॉक में क्या हुआ कि फर्दर लॉस इज रिड्यूस एंड एक्यूरेसी फर्दर इंक्रीज टू 0.91. सो दिस वी कैन एक्चुअली डू. ठीक है. सो रनिंग दीज इपॉक्स अगेन एंड अगेन टू फर्दर चेक मीन्स कि क्या हम कहाँ तक एक्चुअली जा सकते हैं. आप इसको बार बार फिर चलाते रहो. देखो तो यू विल बी फाइंडिंग अ सैचुरेशन स्टेज कि जिससे ऊपर जो है आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है. तो यू कैन से कि ठीक है अब आपका ये मॉडल इस डेटा सेट के लिए ऑलमोस्ट ट्रेन हो गया, ऑप्टिमाइज्ड वे में ट्रेन हो गया. तो दिस इज द थिंग. ठीक है.
नाउ सी व्हाट, अब आप इस मॉडल पे आप प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं। तो प्रेडिक्ट के लिए व्हाट वी विल डू इज कि वी हैव दिस प्रेडिक्शन फंक्शन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। अच्छा ये आप लिख लो, ठीक है। मैं आपको ये कंट्रोल इंसर्ट, ठीक। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। सो इट प्रेडिक्ट्स दैट, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक चेक दैट प्रेडिक्शन। तो हमने क्या किया प्रेडिक्शन में, क्या एक्चुअली हम एक सैंपल देंगे ना, तो हमारे सैंपल किस तरीके से थे। सो वी हैव द सैंपल जो एक्स टेस्ट था हमारा, ठीक है। जो टेस्ट हमने अभी, हमने जो कुछ भी किया था ऑपरेशन, मतलब उसको रीशेप जो किया था, वो ट्रेनिंग वालों को किया था और टेस्टिंग वालों को भी सॉरी किया था। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग में कितने सैंपल्स हैं, 10,000, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस, ठीक। सो व्हाट वी हैव 10,000 सैंपल्स, ठीक है। तो किस तरीके से प्लेस्ड हैं, तो दीज आर ऑल प्लेस्ड दिस मीन्स दिस वे। एक लिस्ट में 2 डायमेंशनल लिस्ट की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो दे आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। तो एक सैंपल हमने लिया कुछ इस तरीके से, सो एक्स टेस्ट 7:8 मीन्स, सो दिस इज द 7th सैंपल, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो क्या है, ठीक है। तो अभी इसको वी कैन एक्चुअली प्रिंट द प्रेडिक्शन, ठीक है। एंड so we are so prediction is again a list, ठीक है। तो ये पहला प्रेडिक्शन, ठीक है। और प्रेडिक्शन ये वैल्यू किस तरह की होगी, दिस वैल्यू विल बी, सॉफ्ट मैक्स हमने लगाया था तो वैल्यू किस फॉर्म में थी, तो वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो पहले प्रिंट में हमारी वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, दैट विल बी इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी थ्रेशोल्ड दिस प्रेडिक्शन, ठीक है, कि प्रेडिक्शन इससे ज्यादा हो तो इट इज 1, ठीक है। सो वी थ्रेशोल्डेड इट एंड फिर देखेंगे कि वो प्रेडिक्शन जो है हार्ड मैक्स करने पे क्या आता है, ठीक है। एंड देन वी प्रिंट दैट समथिंग लाइक दिस वे, ठीक। एंड फिर सैंपल को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज हियर, ठीक। सो हमको क्या मिला, सो वी गेट दिस प्रेडिक्शन दिस वे, ठीक है। भाई आउटपुट क्लास कितने तरीके मीन्स, आउटपुट जो है हमारा सैंपल कितने किस साइज का सैंपल है, ठीक है। इट इज, हमने देखा था ना 10 क्लास, सो 10 साइज का मींस एरे मींस दैट विल रिप्रेजेंट द आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज, और वो भी किस फॉर्म में, वो भी आपकी जो है नॉर्मलाइज फॉर्म में, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज 2.17 e टू द पावर 5 - 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.000 समथिंग वैल्यू, ठीक है, ऐसे ये। तो ये these are the values we will be getting in decimal means in points, ठीक है, in fractions, ठीक। वेयर एज आपको यहाँ पे एक या दो कुछ वैल्यूज ऐसी मिल रही होंगी जो हाईएस्ट होगी, ठीक है। सीधे से यहाँ पे विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, सो द हाईएस्ट वैल्यू इज दिस, हाईएस्ट वैल्यू इज दिस, ठीक है, लास्ट। तो कुल मिला के ये कि दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटीज फॉर द रेस्पेक्टिव क्लासेस, ठीक है। सो ये क्लास हम कहें, दिस इज द क्लास करस्पॉन्डिंग टू 0 digit, दिस इज क्लास करस्पॉन्डिंग टू 1 digit, दिस इज क्लास करस्पॉन्डिंग टू digit 2 एंड सो एंड सो ऑन। तो ये जो है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द digit 9 एंड सी दिस इज होल्डिंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। So this is holding the highest probability. So this is 0.79 means 79%. Means probability is 0.79, ठीक है। तो इसको जैसे हार्ड मैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड करके मीन्स हार्ड मैक्स किया था। सो दिस शोज दैट कि मीन्स जो हमारा सैंपल था इनपुट, वो क्या, दिस बिलोंग्स टू दिस क्लास, मतलब ये 9 है एक्चुअली। ये जो सैंपल था हमारा, ये इसकी क्लास क्या है,
this is 9, ठीक है. So this is, अगर ये 1 होता तो means this would be digit 1, अगर ये 1 होता तो this would be digit, sorry, ये digit 0, this 1, this 2, this 4 and this is 9, ठीक है. Hope this is clear. We can also check the prediction on changing the sample, ठीक है. Let's say we change the sample. So suppose let's say 4,5, ठीक है. So let's run once again, ठीक है. What we find is, so once we run this sample, testing sample, so we find it here. So ये क्या आया? Now see the highest probability is here, ये वाली, ठीक है. So this corresponds to digit 4. This corresponds to digit 4. So this is actually the digit 4 actually. So this is how we can check and classify, train the model and do the prediction of the classification. Hope this is clear to you. ठीक है? Is it clear? अब आप यहाँ पे कुछ भी means you can try changing the values here. ठीक है? जैसे हमने कहा था ना, number of layers, number of neurons in the each layer, ये आप change करके यहाँ पे आप फिर दोबारा इसे रन करा सकते हैं. ठीक है? This you can change and check, run once again. ठीक है? Now what I will do is the next thing. Okay, we will try out another. अच्छा, एक काम करते हैं. Any question anyone have? Please, any question any of the participant if have is having, please. Hello. Any question if anyone is having, please. No. All right. Okay, now what I want to do is I want to have a change. Change for what? Yes, if you want to import our data. So it is just same as कि जैसे हमने उसमें किया था. ठीक है? So simply what we will have to do is we have to do Keras dot load data set. So it take more than 84 epoch Y. Sir, on my it take more than 84 epoch. Epoch you decide actually. Epoch 84 epoch ले रहा है, किसके लिए ले रहा है 84 epoch? तो epoch तो आप decide करते हैं ना. How many epoch you want to run it? What you want to say, Aditya? Amit, how to import it? So we have to write that. I have to check it. What is the function exactly? Okay, for reading. So this is to load from the Keras repository itself. Okay. So simply what we would have to do is we would be having a load function. Okay, or the read data function in Keras. Okay, and there we have to actually give this. Let me check it. Okay. So मुझे देखना पड़ेगा exactly. Just hold on. So what Aditya is saying is, means first I tried 12 epochs and accuracy is 58 to reach the accuracy point, and I have to try 12 epochs several times. नहीं, आप जो है हर एक नए इटरेशन में जरूरी नहीं कि पहले इटरेशन में आपने 12 epoch चलाए तो मीन्स आपने जो पहली बार आपने एग्जीक्यूट किया तो 12 चलाए तो दूसरी बार 12 सेकंड एग्जीक्यूशन में 12 epoch ही लो. It's not means necessary.
आप दैट इज अगेन ऑन यू कि आप जो है कितने नंबर ऑफ इपॉक अगले वाले उसमें चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो यू कैन चेंज द नंबर ऑफ इपॉक इन सेकंड इटरेशन, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज व्हाट यू कैन डू, वी कैन यू कैन आल्सो प्लेस अ कंडीशन, यू कैन आल्सो प्लेस अ कंडीशन कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। जैसे यहाँ यहाँ पे जो है जस्ट अ मिनट आई विल शो यू, ठीक है, कि जहाँ पे हमने वो फंक्शन लिखा है मीन्स एक्यूरेसी जहाँ पे कैलकुलेट या फिट करने के बाद में, तो वहाँ पे यू कैन मेक इट इन अ लूप, ठीक है, फिटिंग जो है अ, तो बेस्ड ऑन और वो लूप किस पे टर्मिनेट कराओ, बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी वैल्यू, ठीक है। तो टर्मिनेशन कंडीशन यू कैन टेक इज द एक्यूरेसी वैल्यू, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, या एरर इतना पहुंच गया, ठीक है, द एरर एरर हैज रीच टू पॉइंट वन और समथिंग, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक। पर फिर वही बात है, मीन्स एक्चुअली दिस दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रेनिंग, वो ये एक्सरसाइज ऑफ ट्रेनिंग क्या है, वो कुछ इस तरीके से है कि मीन्स आप सो इट्स नॉट इसकी आपने एक प्रोग्राम बनाया और आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपका मॉडल आपके पास है, सो आपने आप कितनी बार उसको क्या नाम है ट्रेन कर रहे हैं, कितने सैंपल से ट्रेन कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी मच डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कैसा है, ये एक्सरसाइज कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा और क्या है, आपने कहा कि मेरे पास अभी डेटा सेट 10,000 एलिमेंट्स का है, 10,000 सैंपल्स का है। तो आपने क्या किया कि आपने मॉडल को 10,000 सैंपल से ट्रेन कर लिया। फिर आपने कहा कि आपने अभी आप उससे क्लासीफाई कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया कि आपने और सैंपल्स जो है ऑगमेंट कर लिए, और नए सैंपल्स बना लिए, ठीक है। तो आपको और डेटा मिल गया, तो आप उसी मॉडल के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं, यू कैन फर्दर ट्रेन अबव दैट मॉडल, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या है, इन 4 epochs एंड माइंड टेक्स लॉट ऑफ epochs। नहीं, आप epoch बेटा, आई एम नॉट गेटिंग कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ये जो है जस्ट नहीं, epochs तो आप व्हेन यू एक्चुअली फिट दिस, तो epoch तो आप खुद डिफाइन करते हो, आपके इतने ज्यादा epoch चलेंगे ऐसे थोड़ी होगा। अगर आपको इशू है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप कुछ स्नैप जो है शेयर कर देना मुझे, ठीक है। तो देन वी कैन हैव, ठीक है, चाहे तो आप मुझे ऑन माई मेल आईडी dushyanth@mit.ac.in उसके थ्रू आप यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। तो नहीं, व्हाट वी कैन डू इज कि यू मीन्स यू कैन राइट इट, यू कैन शेयर इट थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपने आपने 2 epoch क्या डिफाइन किए, 12 चल जाएंगे ऐसा नहीं होगा। तो आपने नंबर ऑफ epochs यू डिफाइन ईयर, तो उतने ही epoch चलेंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अच्छा हाँ, द सेकंड क्वेश्चन जो क्या कह रहे थे, हु वाज दैट, रीड कैसे करेंगे दूसरा डेटा, तो हाउ टू इम्पोर्ट आर डेटा। तो उसको कुछ नहीं है अमित, व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपना डेटा जैसे कोई एक सीएसवी फाइल बना सकते हैं ना, एक्सेल फाइल, ठीक है, उसको आप रीड करेंगे, ठीक है। और रीड कैसे करेंगे, वो दैट्स अ सिंपल वे, ठीक है। तो वो किससे, पांडास के डेटा फ्रेम में आप रीड कर सकते हैं, पीडी डॉट, तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एंड पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें पाथ दे दो, ठीक है। तो उसमें से फिर आप जो है उनको एरे बना सकते हो, तो दैट वी हैड सीन इन प्रीवियस एक्सरसाइज, ठीक है। हमें होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ना नेक्स्ट एक्चुअली आई वांट टू गिव यू एन ग्लिम्स ऑफ, जो अगर मान लो हमारा डेटा जो है वो वाला है सेकंड, ये
जो साइफर वाला जिसमें इमेज कलर इमेज है, ठीक है। तो कलर इमेज है तो क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो कलर इमेज वाला जो डेटा सेट है तो हमको क्या करना होगा, पहले तो यहाँ करना होगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लोड द साइफर डेटा सेट, ठीक है, साइफर 10, ठीक। और यहाँ पे इंपोर्ट में क्या नाम है, साइफर 10 कर लो, ठीक है। देन उसके बाद इसको अलग अलग चला लो, ठीक है। तो वी रन इट फ्रॉम स्टार्टिंग, सारे सेक्शंस को साइफर 10 इंपोर्ट करके फिर हमने साइफर 10 लोड किया। अब द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि ये यहाँ पे साइफर 10 डेटा सेट में कितने सैंपल्स ट्रेनिंग के, कितने टेस्टिंग के। तो एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग सैंपल्स 50,000 हैं, तो वी हैव टू गिव दीज वैल्यूज, यहाँ रीशेप कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। सो दिस इज 50,000 एंड ये सैंपल का यहाँ जो सैंपल जो इमेज का साइज कितना है, यहाँ 28x28 नहीं, इट इज 32x32, और वो भी कैसा, कलर्ड है, तो 3 पैलेट्स में। तो कितना हो जाएगा, 32x32 इज 1024, ठीक है। सो 32x32 is 1024 and into 3 will be 3072. So what we will do is we will make this change 3072 से reshape करेंगे 3072. So this is done, remaining things will be same. So let's further, so this is showing here downloading this data, ठीक है। तो इतने सारे सैम्पल्स डेटा वैल्यूज डाउनलोड करी, ठीक है, एंड फिर हमने उसको रीशेप कर दिया, ठीक है। देन सी व्हाट डू नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट को तो भी यहाँ पे भी 10 क्लासेज हैं, तो दिस इज नो डिफरेंस हियर, तो उसको भी हम जो है यहाँ पे सेम वी डू, ठीक है। अब मॉडल को हम लें तो मॉडल को क्या करेंगे, 32 की जगह की लेट्स इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने इनपुट्स हैं, कितने इनपुट फीचर्स हैं, 3072, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो इनको, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दैट, ठीक है। तो समथिंग लेट्स से 128, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ इनपुट शेप क्या हो जाएगी, इट विल बी 3072, 3072, ठीक। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। अगर इस तरह का मॉडल लें तो सो ट्राई दिस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। देन लेट्स चेक द मॉडल समरी। तो मॉडल समरी नाउ सी, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज कर दिए, so these many number of the parameters we get now. Now the total number of parameters become 4.27 lakhs, ठीक है। Now what we do is कि फिर हम इसको कंपाइल करें, फिट करें, ठीक है। सो बैच साइज उतना ही रखते हैं सारी चीजें, ठीक है। लेट्स चेक। So this is see the iterations here, every epoch of the training. This is showing here. So what we find here is that in very first epoch, total loss was 2.0 something, accuracy was 0.25 something, ठीक है। Then second epoch we run, it is 1.8 something, and accuracy loss is that, and accuracy further increases to 0.33. तो यहाँ देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा डेटा सेट कैसा है, और हमने अभी भी सिर्फ 3 ही लेयर ली थी, ठीक है। तो या तो हमको क्या करना चाहिए था, आर यू गेटिंग इट ऑल, क्योंकि हमारा डेटा साइज बढ़ गया, ठीक है। तो हमको फर्दर हमारा जो नेटवर्क भी शायद थोड़ा हमको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। तो हम और फास्टर जो है ये एक्यूरेसी मींस इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो लेट्स फर्दर डू इट, एक और इटरेशन लेट्स से। तो एक्यूरेसी कहाँ तक पहुँचती है, लेट्स सी, 0.36 फिर 0.39। So actually this will take more epochs. This will take more epochs to further reach to that. See, अच्छा एक और चीज, can anyone tell me कि ये इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए?
इतने ज्यादा इटरेशन क्यों हो रहे हैं, और हर एक इटरेशन में भाई हमारा मॉडल भी थोड़ा हमने बड़ा कर दिया, एंड उसके बावजूद भी इन एवरी इटरेशन दिस एक्यूरेसी इज नॉट इंक्रीजिंग एट फास्टर रेट. कैन एनीवन टेल समथिंग हाउ व्हाई इट इज हैपनिंग सो? Why it is happening so? Yes, if anyone can say something for this. So exactly what happening is कि हमारा जो डेटा सेट कैसा है, डेटा सेट हमारा जो है वो पिछले वाले केस में जो है एमनिस्ट वाले केस में डेटा सेट वाज प्रिटी सिंपल. ठीक है, तो वहां पे वेरिएंस जो था ना क्लासेस के बीच में वो बहुत ज्यादा नहीं, मींस दैट वाज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटिव, मींस बहुत ज्यादा वेरिएंस था. और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वेरिएंस बहुत कम है. जो इनपुट हमारा जो है, जस्ट जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, इस वाले केस में जो वेरिएंस इतना कम है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है क्लासेस के बीच में. ठीक है, क्योंकि वेरिएंस कम है क्लासेस के बीच में. ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी विल नॉट से वेरिएंस, रादर कोवेरिएंस, कोवेरिएंस विद इन द क्लासेस. ठीक है, तो कोवेरिएंस इज वेरी लेस कंपेयर टू, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कोवेरिएंस काफी है, एंड हियर द कोवेरिएंस इज वेरी लेस, क्योंकि ये कलर्ड है एक तो. ठीक है, so due to that the classes, the covariance of the classes is very less. ठीक है, and those covariance कम होने की वजह से ये जो है this accuracy means error loss is reduction in error loss is not happening very fast. Hope this is clear. ठीक है, तो आपका ये मॉडल फिट हो गया. नाउ वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट. अच्छा, अब टेस्ट आपका जो है, टेस्ट सैंपल कोई अगर हम लें तो सपोज द सेम 4,5. ठीक है, प्रेडिक्शन यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 क्लासेस. एक्चुअली शो करने में दिक्कत आएगी. ठीक है, ये जो हम सैंपल को शो कर रहे हैं ना, सैंपल को शो करने में लेट मी चेक कि विल इट वर्क और नॉट, या पहले मैं इसको हटा लूँ. ठीक है, ये कोड करने, क्योंकि दैट विल बी अ 3D. ठीक है, थ्री डायमेंशन, कलर्ड इमेज, सॉरी. तो यहाँ पर रीशेप में 3 डायमेंशन हमको देना पड़ेगा. सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन. एक सैंपल हमने ये लिया. Let's check this first. Actually, इसको पहले हटा ही लें थोड़ा सा. So let's try to run this, what it gives. So actually this gives this. तो हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल गई. ठीक है, नाउ सी, जैसे हम कह रहे थे क्योंकि कोवेरिएंस बहुत कम है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है कितनी पास पास है. पिछले वाले केस में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटीज का डिफरेंस काफी था. ठीक है, किसी एक जो बहुत कम थी 0.00 समथिंग में, और जो जो एक्चुअल क्लास थी उसकी सबसे ज्यादा थी. लेकिन यहाँ अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, तो यहाँ 0.25 है, ये 0.29 है. ठीक है, सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस है, यहाँ 0.22 है, बाकी सब 0.0 के आगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट सैंपल है, सो दिस इज मच मोर नियरर टू टू ये वाली क्लास की करस्पॉन्डिंग, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास. ठीक है, तो इन तीन की नियरर है. अब हम तीनों में से कोई एक, ये जो हाईएस्ट है इसको हम कह देंगे कि दिस आर सैंपल बिलोंग्स टू दिस. ठीक है,
तो अगर हम देखें तो ये क्लास कौन सी है, मैं प्रिंट करा के देखें जरा, व्हाट इज दैट, प्रिंट होगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा वो। एक्चुअली दिस इज गिविंग एरर। नॉट हियर, लेट मी प्लॉट दैट इमेज। ठीक है, so image ये sample and 3 क्रॉस 32 क्रॉस 32, 3 क्रॉस reshape करके 32 क्रॉस 32। ठीक है, एंड ये ग्रे की जगह इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, लेट्स check it whether it runs or not. I'm not pretty sure. Actually ये रीशेप जो है, आई एम नॉट वेरी कंफर्म कि रीशेप हम कैसे करेंगे, इसको मुझे देखना पड़ेगा। या तो ये ऐसे होना चाहिए 32 क्रॉस 32 क्रॉस 3। हाँ, yes, it is giving here, so everyone can see this. So this is what means, जो हमारा टेस्ट सैंपल था ये हमने प्लॉट कर लिया, एंड व्हाट इट इज शोइंग इज कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये हम प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे मैक्सिमम है 0.29। अब एक्चुअली ये प्रोबेबल कैंडिडेट हैं, हम वैसे तो हम ये कहते हैं कि जिसकी सबसे मैक्सिमम है वो हम कहते हैं कि सैंपल बिलोंग्स टू दैट क्लास। तो या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा या फिर ये। अब हमको देखने से पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास किसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये बर्ड क्लास, एक तो बर्ड क्लास है थर्ड, तीसरी, और फिर उसके बाद है डियर क्लास, फिर उसके बाद एक छोड़ के फ्रॉग क्लास। सो एक्चुअली है क्या, दिस इज शोइंग दैट कि दिस ईदर बिलोंग्स टू अ बर्ड क्लास, डियर क्लास और फ्रॉग क्लास। क्योंकि वो इसलिए तीन में से ये जो बर्ड क्लास, नहीं सॉरी फ्रॉग क्लास, यस दिस इज शोइंग फ्रॉग क्लास, दिस करेक्टली क्लासिफाइंग इट, दिस इज करेक्टली क्लासिफाइंग इट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ फ्रॉग, दिस इज अ दिस इज अ फ्रॉग, दिस इज अ फ्रॉग हियर, एंड ये जो प्रोबेबिलिटी, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द फ्रॉग क्लास, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द फ्रॉग क्लास। यहाँ से सीरियल नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ क्लास का कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ इज अ फ्रॉग क्लास। So this is showing that correctly, means ये जो है this is a frog here and its class is frog. Image को देख के it is telling that it is a frog. Oh, hope this is clear to everyone. Hello. So this is all from my side for this coding part. ठीक है, बाकी we will be discussing what are the means issues in the neural network and how we move to the deep networks. ठीक है, deep neural networks. ठीक है, and possibly अगर होगा उसमें तो फिर कल उसमें भी एक example दिखाएंगे, and this is for tomorrow, and now this is all for today. Any question please? This way everyone can actually check out and run the things on your own data set and other kind of the data set. सर ये ब्लर क्यों आ रहा है, हमें तो कहेंगे ब्लर। भाई ब्लर इसलिए आ रहा है क्योंकि कितने पिक्सल्स हैं, 32 पिक्सल्स। भाई आप 32 पिक्सल्स को इतने बड़े में दिखाएंगे तो ब्लर ही दिखेगा ना। आप इसको थोड़ा छोटे साइज में, मीन्स इसका डीपीआई कम कर दो, मीन्स डॉट्स पर इंच, 1 इंच में, मीन्स इसको कम इंचेस में अगर आप दिखाएंगे 32 पिक्सल्स तो ये ब्लरिंग कम हो जाएगी। दैट्स द ग्राफिक्स एंड द इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। Any other question? So, madam, this is all from my side for today, and tomorrow we will be again at the same time, morning में 10. Okay? Yeah, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. This is of the neural network and the deep learning. Okay? Yeah. Okay. Then we can end the meeting now. यस सर, टुमारो कल के लिए वो अनाउंसमेंट कर दीजिए आने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट डे है। Yes. Tomorrow will be the last day of internship, so all the students have to
come. It's mandatory to all the students. And if you have friends, then inform them also. क्योंकि last day है, तो आप सबकी attendance compulsory है. और जो आपके friends हो, उनको भी आप inform कर दीजिएगा. And tomorrow Okay. 10 o'clock, we will meet. Thank you, ma'am. Right, sir? So, Yes, yes, okay. yes, Thank you, sir. sir. Okay.